Good morning, dear students. Today we will discuss about the chapter number 3 of Hornbill, that is Discovering Tut. The saga continues. Part 1. In this chapter, writer describes the story of the great civilization which was flourishing in Egypt. At that time, Egypt was ruled over by a powerful royal family. The rulers left behind their majestic tombs. They were mummified and kept in their tombs. They believed in rebirth. It was hoped that he rulers and rise again. Tut was the person who was the last ruler of the royal family. He died in his youth unexpectedly. A great archaeologist, Howard Carter, discovered this tomb in 1922, where he found everything intact. इस चैप्टर के अंदर A.R. विलियम साहब ने मिस्र की एक ग्रेट सभ्यता के बारे में डिस्क्राइब किया है, जहाँ पर एक रॉयल फैमिली के द्वारा रूल किया जा रहा था। वे रीबर्थ में विश्वास करते थे और उसी को लेकर जो लास्ट वहाँ पर किंग थे जिन्होंने रूल किया, दैट इज टट, उन्हीं के बारे में यहाँ पर ये चैप्टर बनाया गया है, बताया गया है। आइए इसको शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही वॉज डाइड। मीन्स कि जब उसकी मृत्यु हुई वह किशोर अवस्था में था, यंग था। द लास्ट heir of powerful family that had ruled Egypt and its empire of centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. वह उस शक्तिशाली परिवार का उत्तराधिकारी था जिसने मिस्र व उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक शासन किया था। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world was speculated about what happened to him. आधुनिक विश्व ने इस विषय में अनुमान लगाए कि उसके साथ क्या हुआ होगा, जिसने अंतिम संभावना उसका व्यक्त होने की थी। Murder being the last extreme possibility, now leaving his tomb for the first time in almost 18 years. अब उसके मकबरे को 80 वर्षों में पहली बार छेड़ने से पहले Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death, जिससे उसके जीवन व मृत्यु के विषय में नए सुराग मिले तथा ठीक जानकारी मिली। And provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's फरो, जिससे इस बालक फैरो की वैज्ञानिक जांच हो पाएगी। अब इसके आगे पैराग्राफ में राइटर लिखते हैं कि एन एंग्री विंड स्टीयर्ड अप घोस्टली डस्ट डिवाइस एज किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टलिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्टियन कैमेटियन नोन एज वैली ऑफ किंग्स। जब राजा टुट को उसकी कब्र मिस्र के समाधि क्षेत्र से, जो राजाओं की घाटी कही जाती थी, वैली ऑफ किंग, बाहर निकाला गया तो क्रुद्ध हवा ने भूतों जैसे धुत के शैतान खड़े कर दिए। डार्क बिल्ड क्लाउड्स हैज scooded across the desert sky all the day and now were wheeling the stars in the cascade grey. काले तोंद वाले बादल दिन भर तेजी के साथ उड़ते रहे और तारों को सुरमई पिटारी में छुपाए थे।
It was 6 p.m. on 5th January 2005. यह 5 जनवरी 2005 को 6 बजे विश्व की सबसे प्रसिद्ध ममी सिर की ओर से टी स्कैनर में धीरे धीरे अंदर गई. The world's most famous mummy guided head first into CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of the little understood young ruler who had more than 3,300 years ago. इस स्कैनर को, इस युवा शासक को जिसकी मृत्यु 3,300 वर्ष पहले हुई थी से संबंधित चिरकालिक रहस्यों की जांच करने के लिए लाया गया था. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. तीसरे पहर श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व भर से आए पर्यटकों की सामान्य कतार चट्टान में भरे तंग मकबरे में 26 फीट पृथ्वी से नीचे उतरती रही. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at the Tut's gilded face. The most striking features of his mummy-shaped outer coffin lid. वे कब्र के भित्ति चित्रों को देखते रहे तथा टूट के सोने के बने चेहरे को देखते रहे जो मम्मी के नक्शों से आश्चर्यजनक ढंग से मिलता जुलता सा था. तब ताबूत के बाह्य ढक्कन पर बना था. Some visitors read from guided books in a whisper. कुछ पर्यटक फुसफुसाते हुए गाइडों में से पढ़ रहे थे. Others stood silently. कुछ चुपचाप खड़े थे. Perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens or wondering with a shiver of the pharaoh's curse. शायद उसकी 18-19 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु के विषय में चिंतन कर रहे थे अथवा यह सोचकर कांप उठते थे कि क्या फेरो का अभिशाप वास्तव में सच हो सकता है, अर्थात डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू. अर्थात उन लोगों की जो उसकी शांति भंग करेंगे उनकी मृत्यु हो सकती है अथवा उन पर मुसीबत आ सकती है. द ममी इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कैरियर डाइड इन द 1920s शेड जहीज हाउस. जो कार्टर ने 1920 में किया उस कारण यह ममी खस्ता हालत में है. महासचिव जाही हवास ने मृत शरीर को बहुत देर तक देखने के बाद कहा. क्या कहा? कार्टर शेड, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज. कार्टर का अर्थ अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता हावर्ड कार्टर से था जिसने वर्षों तक निष्फल कोशिश के बाद 1922 में टट का मकबरा खोजा था. He learned over the bodies of long first Howard Carter, that is, was the British archaeologist who was 1920 discovered Tut's tomb after the years of futile searching. Its contents, through hastily rationing the antiquity, were surprisingly complete. उसकी अंदर की सामग्री यदि पुरातत्वों की खोज में जल्दबाजी में छान दी गई थी फिर भी आश्चर्य ढंग से पूर्ण थी. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. खोज के समय सोने के आश्चर्य करने वाले कलात्मक वस्तुओं ने उस समय सनसनी पैदा कर दी तथा आज भी उसका ध्यान आकर्षित करती है.
Their eternal brilliance meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention. But Tut was also buried, and everyday things he had want in the afterlife, board games, a bronze razor, leather undergarments, cases of a food and wine. उन वस्तुओं की शाश्वत चमक पुनर्जीवन की गारंटी देती थी, लेकिन टूट को दैनिक प्रयोग की वस्तुओं को के साथ भी दफना किया था। वे वस्तुएं जिनकी उसे अगले जीवन में ज़रूरत होगी, जैसे पटखेल, कांसे का उस्तरा, लिनन के अंत्यवस्त्र, भोजन तथा शराब की पेटियां। आफ्टर अ मंथ्स ऑफ केयरफुल्ली recorded Pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins. फ़ैरो की दफन की दौलत को महीनों तक ध्यान से लिपिबद्ध करने के बाद कार्टर ने उसे 3 कोचों में रखे उसके ताबूत की जांच करनी शुरू की। ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड अ shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of burial in March or April. पहले का खोलने पर उसने एक कफन को देखा जो विलो, जैतून के पत्तों, जंगली सेलरी, कमल की पंखुड़ियों तथा कांड फूलों की मालाओं से सुसज्जित था। ये सूखे फूल पत्ते इस बात का प्रमाण था कि अंतिम संस्कार मार्च अथवा अप्रैल में हुआ था। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. The ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. वह मम्मी तक को अंत में पहुंच गया, लेकिन कठिनाई में फंस गया। अनुष्ठान में प्रयोग की गई किशमिश कठोर हो गई थी तथा टूट अपने ठोस सोने की सब लपेटी तट के सीमेंट की तरह जम चुका था। Tut to the bottom of his solid gold coffin, no amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. टूट अपने ठोस सीने के सब पेटी तले के तट सीमेंट की तरह जम चुका था। कोई भी उचित ताकत उन्हें हिला न सकी। कार्टर ने बाद में लिखा, क्या किया जाए? द सन कैन बीट डाउन लाइक अ hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. मिस्र के इस सुदूर दक्षिणी भाग में सूर्य हथौड़े की तरह चोट कर सकता था तथा कार्टर ने इसका प्रयोग किशमिशों को ढीला करने के लिए किया। For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. उसने मम्मी को बाहर झुलसती धूप में उसने 149 अंश फ़ारेनहाइट तक गर्म किया, पर कुछ नहीं हिला। Nothing buzzed. He reported with scientific detachment that the concentrated material had to be chiseled away from the beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. इसके पश्चात उसने वैज्ञानिक निर्लैप भाव से लिखा कि राजा के अवशेष को उठाने से पहले पदार्थ को उसके अंगों व धड़ों के नीचे से छेनी से काटना पड़ता था। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में इसके आगे करेंगे।